न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बड़ाकर में गैरकानूनी तरीके से चल रही आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने किया मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार। आसनसोल शिल्पांचल में किशोर कुमार के रूप में परिचित दुर्गा राणा के घर निर्माण के लिए फिर से शिलान्यास। मेरे महबूब कया मत होगी। बिना लाइसेंस की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने और बेचने के आरोप में पुलिस ने बड़ाकर के एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। उनके साथ ही उनके 4 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ाकर के हनुमान चढ़ाई इलाके के बावड़ीपाड़ा के रहने वाले रितेश कुमार गुप्ता अवैध रूप से आयुर्वेदिक दवाइयां बनाकर बेच रहे हैं। ये दवाइयां कृष्णा इंटरप्राइज के ब्रांड के नाम से बेची जा रही थी। बड़ाकर पुलिस फाड़ी ने सोमवार की रात को गुप्ता के ठिकाने पर छापा मारा और वहां से 1,55,000 से भी अधिक मूल्य की दवाइयां बरामद। इनमें कफ सिरप, दर्द निवारक दवाएं, मधु आदि शामिल हैं। छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने रितेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया। उनके साथ अजय गुप्ता, रुपेश गुप्ता, सुमन रुईदास और अशोक कुमार चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया, जो रितेश के साथ जुड़े थे या फिर उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। मंगलवार को सभी को आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कुल्टी थाने के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर उमर अली मोल्ला ने मीडिया को बताया कि रितेश कुमार गुप्ता के पास दवाइयां बनाने के लिए किसी तरह का लाइसेंस नहीं था। गैर कानूनी तरीके से दवाइयां बनाई जा रही थी, जिन्हें बंगाल के बाहर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बेची जा रही थी। कल के 14/2021 4टे साढ़े 4टे नागाद করে আমরা একটা খবর পাই যে কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজ যেটা আছে বড়াকর হনুমান চড়াইয়ের কাছে, সেটা একটা ইলিগ্যাল ওয়েতে কিছু মেডিসিন তৈরি করছিল এবং সেগুলো সেল করেছিল। মেডিসিন, মধু ইত্যাদি তৈরি করছিল এবং সেগুলো সেল করছিল, যার মার্কেটটা মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ইউপিতে। তো আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করি। আমাদের টোটাল অ্যাকিউজড 5 জন পেয়েছি আমরা, তার মধ্যে 2 জন মূল অ্যাকিউজড এবং 3 জন তাদের অফিসিয়াল স্টাফ যারা এইসব জিনিসগুলো তৈরি করতো। তো এদের কাছে কোনো রকম মেডিকেল লাইসেন্স নেই, ড্রাগ লাইসেন্স নেই যে তৈরি করার জন্য, এবং যে মধুটা তৈরি করেছে তার জন্য কোনো FSSAI কোনো সার্টিফিকেট নেই। সুতরাং পুরোটা ইলিগেল এবং টোটাল ভ্যালুয়েশন যেটা দাঁড়াচ্ছে অ্যাজ পার দেয়ার MRP সেটা হচ্ছে 1.5 লাখ। 1.5 লাখের আশেপাশে এই টোটালটা আমরা সিজ করেছি। এবং তার মধ্যে যে ওষুধগুলো তৈরি হয়েছে তার মধ্যে আমরা সিরাপ পাচ্ছি, কিছু কফ সিরাপ পাচ্ছি, ডিসেন্ট্রির কিছু ওষুধ পাচ্ছি, তার সঙ্গে অ্যানালজেসিক এবং অ্যান্টিপাইরেটিক ট্যাবলেট অর্থাৎ ব্যাক পেন, মাথা ব্যথা, জ্বর ইত্যাদির জন্য যে ওষুধগুলো ব্যবহৃত হয় সেই ওষুধগুলো আমরা পাচ্ছি। তো আমরা এদেরকে অ্যারেস্ট করেছি। অ্যারেস্ট করে আমাদের কোর্টের থেকে আমরা 14 দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। স্যার এদের বাজারটা বলেছিল এরা বিক্রি করতে কোথায়? এরা বিক্রি করতে মূলত মার্কেটটা হচ্ছে এদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ইউপি যে প্রত্যন্ত এলাকাগুলো আছে, গ্রামীণ এলাকা যেখানে মানুষজনের অত অ্যাওয়ারনেস নেই, সেখানে এরা একটু বেশি বিক্রি করতো। কতদিন ধরে ব্যবসাটা করছে? ব্যবসাটা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। তো আমরা রিসেন্টলি খবর পেয়ে আমরা অ্যাকশনে নামি এবং আমরা তাদেরকে হ্যাঁ। এরপর ফার্দার স্টেপ কি হবে স্যার? ফার্দার স্টেপ হচ্ছে কি গিয়ে এবার এদের যে রিটেলারগুলো আছে অর্থাৎ এই যে বিক্রি কোথায় করছে সেই জায়গাগুলো আমাদেরকে এবার করতে হবে, দেখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যদি এরা তো তৈরি করছে, উৎপাদন করছিল ফ্যাক্টরি থেকে, এবার সেটা সেল করার জন্য একটা তো আউটলেট থাকবে, সেই আউটলেটগুলোতে আমরা এখন এবার বড় এলাকায় থাকার জন্য কি সুবিধাটা নিয়েছে তারা? এটা একভাবে বলা যাবে না যে বর্ডার এরিয়া বলে এটা সুবিধা পাচ্ছে, হতেও পারতো যে অন্য কোথাও থেকে এটা সুবিধা পেতে পারতো। তো এটা বর্ডারের উপর কোনো ডিপেন্ডেন্ট নয়। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. मेरे महबूब कया मत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें जो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी।
ये है आसनसोल के किशोर कुमार के नाम से परिचित दुर्गा राणा। आसनसोल शिल्पांचल के कुल्टी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डिसड़गढ़ में इनका ठिकाना है। इनका घर जर्जर था। पिछले मेयर जितेंद्र तिवारी ने इनके नए घर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था, लेकिन उनके इस्तीफे देने के बाद काम बीच में ही अटक गया था। अब फिर से दुर्गा राणा के घर के निर्माण का काम शुरू हुआ, फिर से शिलान्यास किया गया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने मंगलवार को उनके नए घर के निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया। इस मौके पर नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक भी उपस्थित थे। उनकी नजर में आने पर ही प्रशासक द्वारा दुर्गा राणा के नए घर के निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दी गई। मंगलवार को बकायदा एक कार्यक्रम कर यह निर्माण कार्य शुरू किया गया। शिल्पांचल के किशोर कुमार कहे जाने वाले दुर्गा राणा के घर निर्माण शुरू पर अमरनाथ चटर्जी ने खुशी जताई है। এটা তো এই কাজটা তো হয়েই ছিল, তো আবার দ্বিতীয়বার উদ্বোধন করতে হলো। না দ্বিতীয়বার না, এটাকে আমরা বোর্ড মিটিংয়ে পাস করিয়েছিলাম যে এরকম একটা ঘর এরকম একটা শিল্পীর জন্য করে দেওয়া উচিত, কিন্তু সেই সময় যিনি ছিলেন তিনি হয়তো সেটাকে ঠিক মতন করে উঠতে পারেননি কোনো কারণবশত। তার জন্য আমরা দুঃখিত আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে। তো আজকে আমরা যেটা চিন্তা ভাবনা করলাম, গত কয়েকদিন পূর্বে অভিজিৎ ঘটক এই কথাটা উত্থাপন করার পরে আমরা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করলাম যে না, এরকম একটা মানুষের জন্য যদি পৌর নিগম কাজ করতে পারে, যে কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার এবং শিল্পীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার এবং মনীষীদের মর্যাদা দেওয়ার কথা যে বারবার বলে আসছেন, এই কাজটা করতে পারলেই আমরা মনে করব যে আসানসোল পৌর নিগম ঠিকঠাক মতন কাজ করছে। সেই জন্য আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাজটাকে ত্বরান্বিত করে আজ থেকে শুরু করলাম। दुर्गा राणा को उम्मीद है कि इस बार उनका घर सचमुच में बनकर रहेगा। फिर से निर्माण कार्य शुरू होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। সেটাকে কিভাবে দেখবো আমি, আর নিরাশার দোলাই দেখছি ওটাকে। এখন তো নতুন যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তিনি আসছেন আপনার ঘরে, তো এই কিভাবে মানে এখন যে এসছে কেমন লাগছে আপনার? আমার তো তার সম্বন্ধে আমি খুব আশাবাদী, মানে ঘর হয়ে যাবে, ঘর হতে পারে আমার। তোমায় পড়েছে মনে আবার শ্রাবণ দিনে, একলা বসে নিরালায় তোমায় পড়েছে মনে, ভিজে যাওয়া বর্ষার হাওয়া কেন নিয়ে এলো বেদনার খেয়া মেঘলা মনের কিনারায়, হায় নিরাশায় বসে আছি এই নিরালায়, তোমায় পড়েছে মনে আবার শ্রাবণ দিনে, একলা বসে নিরালায়, হায়। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और
हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पिछले कुछ महीनों से नियामतपुर के FCI गोदाम से PDS के लिए राशन सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे यहां से जुड़े मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। बाध्य होकर मजदूरों ने मंगलवार को FCI गोदाम को बंद कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। FCI के इस गोदाम के अधिकारी अरविंद कुमार एक्का को भी अंदर नहीं जाने दिया। मजदूरों ने अपना यह आंदोलन INTUC के बैनर तले किया। उनका आरोप है कि नियामतपुर गोदाम से रिलीज ऑर्डर जारी नहीं कर दुर्गापुर से किया जा रहा है। हम लोग यहाँ DM आया हुआ है AK पोलदार, वो हम लोग का जितना भी नियामतपुर का जो आरोप था सीतामपुर डिपू का, उसको काट कर पश्चिम बंगाल का काट के दुर्गापुर डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ पर 15,000 मार्च पावर हम लोग का है, जिसका रोजी रोटी एक्सचेंज से चलता है। चाय दुकान हो, पान दुकान हो, सब इसी पर डिपेंड करता है। आज कोविड-19 के चलते गोटा देश में आकार मचा हुआ और हम लोग जो रोजगार होते हुए रोजगार छीन के दिया जाए दुर्गापुर में, बर्धमान में। इसी के लिए हम लोग एम को घेराव किए हुए हैं। जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा एम को हम लोग यहीं बैठा जाते हैं। हम लोग का DO आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। कस के बोले तो हम लोग का DO आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। हम लोग लेबर लोग 2 महीना से 3 महीना से भूखे हैं। जनवरी से ऐसे कर रहे हैं DO। ये एरिया मैनेजर कुछ नहीं सुनता है। जब भी हम लोग को स्ट्राइक करता तब देता, नहीं तो बिना स्ट्राइक में हम लोग काम हर महीना में 15 दिन 1 महीना बैठा दे रहे हैं। ये कब से हो रहा है? ये जनवरी से है। तो ये आरो क्या है? ये RO माल आता है, यहाँ इशू होता है। इशू नहीं दे रहा का नहीं, इशू नहीं दे रहा। नहीं दिया इशू हो गया अभी तो मैंने अगला महीना भी नहीं हुआ था। हम लोग को स्ट्राइक किया तब दिया। फिर यही महीना में भी हम लोग को 1-2 तारीख का जो रेट खत्म हुआ इसके बाद से बैठा है। वो आज आएगा, कल आएगा, इसको पूरा आज हम लोग सुना जाए RO सब चल गया दुर्गापुर, इसीलिए हम लोग भूखे मर रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। वहीं नियामतपुर FCI गोदाम के अधिकारी अरविंद कुमार एक्का ने बताया कि रिलीज ऑर्डर क्यों नहीं जारी किया जा रहा, उन्हें यह जानकारी नहीं है। यह काम एरिया ऑफिसर से होता है। हमारा जो वर्कर्स लोग अंदर हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग को RO नहीं मिला। RO मतलब वर्क ऑर्डर है ना, रिलीज ऑर्डर। वर्कर किस कारण नहीं हो रहा, कुछ बता सकते हैं? कारण तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफिस पे कटता है और एरिया ऑफिस कटता है। इस विषय में क्या आपने उच्च अधिकारी को बताया किसी को? मैं अभी जस्ट मेल कर दिया हूँ और इसे व्हाट्सएप में भी मैं भेज दिया हूँ। यहाँ का फ़ोटो वगैरह भेज दिया हूँ। सर इसका कुछ डिसाइड कीजिए। ये RO क्या है, क्या नहीं मिला, तो डिटेल में बताइएगा आप। रिलीज ऑर्डर क्या होता है? रिलीज ऑर्डर मतलब कि दोनों का यार यहाँ से स्टॉक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, PDS हो या वॉल्यूम PDS हो या जो भी जो स्कीम में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उन्हीं का वही चीज़ का स्टॉक उठने के लिए RO जिसको पड़ेगा रिलीज ऑर्डर पड़ेगा। तो किस कारण से नहीं मिल रहा है कुछ? ऐसा कारण तो एरिया मैनेजर ही बतला पाएंगे और हम लोग को ऐसा बतलाते नहीं है कुछ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पिछले महीने आए भयंकर चक्रवाती तूफान यास से बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिले काफी प्रभावित हुए थे। तूफान से प्रभावितों को लगातार आसनसोल से राहत सामग्री भेजी जा रही है। मंगलवार को आसनसोल जिला बार एसोसिएशन ने भी पूर्व मेदिनीपुर जिले के तूफान प्रभावित इलाके के लिए राहत सामग्री भेजी। करीब 700 पैकेट बनाए गए थे, जिनमें जरूरी सामान थे। ये हम लोग का बार में जितने भी नवीन और प्रवीण जितने भी वकील हैं, सबका उद्योग से ये काम हम लोग कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित जो यहाँ पर हम लोग के यश में जो क्षति हुआ है दीघा या मंदारमनी के तरफ, उस क्षति को हम लोग जितना भी थोड़ा मोड़ा जहाँ से हम लोग कलेक्ट करके वहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। तो कितना पैकेट है? कितना पैकेट है? करीब 700 पैकेट है। ये कहाँ जाएगी? ताजपुर।
सातपुर जा। जितना भी आइटम है सारा चीज़ दिया गया। क्या क्या इसमें डाले हैं आप लोग? चावल है, मूली है, चिवड़ा है, गुड़ है, पतासा है, मोमबत्ती है, हल्दी बिस्किट, सारा चीज़ जरूरत का जितना सामग्री है सब दिया गया।